And good afternoon to everyone. My name is Irfan Bashir Malik, and for those who've already attended our sessions, would know me already. Um, मैं इंडस्ट्री के अंदर तकरीबन it's been like 23-24 years now that I've been in the industry. I'm running a company of my own in Lahore. We work on all kind of different technology stacks, including AI, ML, blockchain, full stack, and pretty much all technology stacks related to AI, ML, data science, data engineering, full stack. Um, the idea of today's session is to uh, give you guys familiarity with what exactly is blockchain and blockchain development. It's a mouthful because a lot of different technologies and a lot of different definitions are interconnected. So in this particular session, what I'm going to do is कि जितनी भी ज़्यादा different definitions हैं, we'll try to make sense of them, and then एक basic introduction of blockchain का लेके हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे. We will start our formal blockchain boot camp next month. उससे पहले हमने ये 3 प्री बूट कैंप सेशंस करने हैं. The idea is to, for anyone who is not done development before, या कुछ स्टूडेंट्स जो कि बिल्कुल नए हैं, थोड़ा सा उनको कॉन्सेप्चुअली हम एट पार लेके आए कि जहाँ पर वो when they are thrown into the boot camp, तो वो they can make sense of what is being discussed, right? So the idea of this pre-boot camp is to not only familiarize you guys with the basic concepts, but also हमने ये भी करना है कि एक प्री रेक्विजिट है उस बूट कैंप का, क्योंकि कुछ ऐसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बूट कैंप के अंदर शायद हम डिस्कस ना कर सकें. बूट कैंप इज गोइंग टू बी between 4 to 6 weeks long. उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देंगे हम, बट द आइडिया इज़ वेरी सिंपल कि हमने बेसिक्स से लेकर कुछ थोड़े से एडवांस्ड प्रैक्टिकल टॉपिक्स को टच करना है, एंड देन व्हाट वी विल डू इज़ वी विल टॉप इट ऑफ विद अ कैपस्टोन प्रोजेक्ट, यानी कि उस बूट कैंप का जो लॉजिकल कंक्लूजन होगा वो एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट होगा कि जो कि आप लोगों को करना पड़ेगा. एंड देन we'll also give formal certifications from ETL Online to those who have passed. So it's going to be an extensive exercise. ऐसा नहीं है कि आपने एक ऑनलाइन सेशन अटेंड कर लिया है या आप सेशंस अटेंड करते रहे मुख्तलिफ और आपको कोई सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ऐसा नहीं है. आई हैव डन बूट कैंप्स ऑल माई लाइफ, अटेंड किए हैं. My first boot camp was when I was in Microsoft. SharePoint. Probably you guys have heard about the technology. तो हमने क्या किया था कि जो 5 या 6 दिन का एक फिजिकल सेशन था जिसके एंड में आपको एक सर्टिफिकेशन ऑफ पार्टिसिपेशन दे दिया जाता है. This one is going to be hands-on. What we are going to do is we'll make sure or try to make sure that only those who are interested in learning get access to that. It's a very exclusive event because इस तरह के ऑनलाइन इवेंट्स जो हैं वो कॉस्ट मनी. व्हेन आई डिड अ सिमिलर ब्लॉकचेन डेवलपमेंट बूट कैंप बाय अ कंपनी कॉल्ड कंसेंसस, आई हैड टू पे north of $1,000 for that boot camp, और वो भी ऑनलाइन था. So what we want to do is we want to make sure that people um, who are selected to be participants in those boot camp actually deserve that. और उसके लिए फिर हमने criteria भी define किया है. We'll announce the criteria and associated quizzes with that as well. So keep a lookout on the portal. आप लोगों में जो अभी तक पोर्टल पर एक्टिव नहीं है, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि वो पोर्टल पे एक्टिव हो जाए, ताकि आप लोगों को, क्योंकि वहाँ पर द आइडिया है कि हमने कंट्रीब्यूशन बेस्ड लोगों को सेलेक्ट करना है, नॉट ओनली स्किल बेस्ड बट कंट्रीब्यूशन बेस्ड. सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, let's formally start today's proceedings. मैंने
आज के जो प्री बूट कैंप है इसके लिए कोई प्रेजेंटेशन नहीं बनाई, because the idea is to communicate with you guys directly in a question answer kind of a session. Okay, एक छोटी सी डायग्राम है. Let me share that diagram with you, and then we'll have a question answer or kind of a more of an interactive session on that. ठीक है? So let me know when you guys can see my screen. जी आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? Okay, I'm assuming that you guys can see my screen because I got a message that everyone can see the screen now. Okay, so whenever we talk about blockchain, right, there are certain overlapping concepts जो कि बहुत ज़्यादा ना mix हो जाते हैं. So I would want to start with developing an understanding of what blockchain is and how does it fit within the uh, more broader paradigm what we call Web 3.0. ठीक है? There is a very interesting video that we have shared on uh, on the portal जो कि explains the evolution of वेब 1.0 किसको कहते हैं, वेब 2.0 किसको कहते हैं, वेब 3.0 किसको कहते हैं. अभी चूंकि टाइम जरा कम है तो I'll just give you a brief overview of what web point 1 was. ये वर्ल्ड वाइड वेब की जो पहली इनकारनेशन थी उसके अंदर यू वुड हैव मोर ऑफ स्टैटिक वेबसाइट्स, यानी कि आप अपना कोई भी वेबसाइट है वो अपना कंटेंट पब्लिश कर देते थे और देयर वाज वेरी लिटिल interaction that was happening between the website and the users, kind of like your news feed, news channel, इस तरह की चीजें. And then the second incarnation was dynamic web, where people would interact more dynamically with your website. And then इसके अंदर फिर आस्ता आस्ता social media भी आ गया है सारा कुछ. But the key concept there is and still is कि अगर मैं फेसबुक के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, इट्स अ वेरी इंटरेक्टिव वेबसाइट, अ लॉट ऑफ डायनामिक स्टफ हैपनिंग, राइट? बट फेसबुक इज स्टिल कंट्रोल्ड बाय वन सेंट्रल अथॉरिटी. ठीक है? आज हम अगर आप देखें तो देयर इज लॉट ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट गोइंग अराउंड पीपल्स प्राइवेसी ऑफ डेटा एंड दैट काइंड ऑफ स्टफ. एंड देन फेसबुक या इस तरह के जो दूसरी कंपनी है उनके सीईओ को बुलाकर तो गवर्नमेंट्स जो हैं वो प्रेशराइज भी करती हैं टू शेयर द डेटा कि अच्छा ये पोस्ट किसने की थी, इस तरह का सारा काम, राइट? So the idea is very simple. How do you step away from the web which currently is? So आज भी हम अगर मैं बात करूं तो we are still like in a flux. We are stuck between web 2.0 and web 3.0. Web 3.0 has been around for say maybe 10 years now, the concept of web 3.0. लेकिन इसको चूंकि ये एक पैराडाइम शिफ्ट है, इसको टाइम लगेगा to become omnipresent and to be the kind of future of the web that that it proclaims to be. So इसके जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो हैं क्या? अच्छा, बिफोर आई डू दैट, अभी तक जो मैंने डिस्क्रिप्शन दी है रिगार्डिंग वेब 1.0, वेब 2.0, वेब 3.0, उस पर अगर कोई क्वेश्चन है तो हम डिस्कस कर लेते हैं. देन आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दिस पर्टिकुलर चार्ट टू यू, दिस पर्टिकुलर डायग्राम टू यू. इफ यू गाइस हैव अ क्वेश्चन तो आप यू कैन रेज योर हैंड और यू कुड रिक्वेस्ट एंड देन वी विल अनम्यूट यू. चैट में भी आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं बाय द वे. ओके, देयर इज वन मैसेज, ऑल क्लियर सर. ओके, सागर Chabria. Very interesting name. Where exactly are you from, Sagar? Anyways, so
while we wait for Sagar's response. Kandkot, mashallah, good, yeah, good, good. I hope the internet is stable around there. Like very, very warm welcome to you, Sagar. And we would encourage you to sort of propagate the message. Again, मैं अगर फिर दोबारा अपना इंट्रोडक्शन कराऊं, इरफान बशीर मलिक, here I am, and ex Microsoft, सारी उम्र बाहर बड़ी बड़ी Fortune 100 कंपनीज में काम करते हुए गुजरी है. This is your opportunity to talk directly to an industry expert and clarify the concepts that you may have in your mind. Okay. So moving on, again, I'm trying to mix English and Urdu so that आप लोगों को भी थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि इंटरेस्ट पैदा हो अपनी कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव करने के लिए, बिकॉज आपकी जो कैरियर ग्रोथ है उसमें टेक्निकल और कम्युनिकेशन विल गो हैंड इन हैंड. एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक. सो अभी तक मैंने जो एक्सप्लेन किया था वेब 3.0 तक हम पहुंचे कैसे. सो अभी जो वेब 3.0 का जो प्रॉमिस है वो क्या है, क्योंकि ब्लॉकचेन इज जस्ट वन पार्ट ऑफ दैट बिगर प्रॉमिस. सो अगर आप ये मेरी माइंड मैप को देखें, इस तरह की जो डायग्राम है ना, इसको कहते हैं माइंड मैप. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टूल टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट इन इट्स लार्जर कॉन्टेक्स्ट. ठीक है. सो वेब 3.0 एक सेंट्रल आइडिया है. ठीक है. और ये क्या प्रॉमिस करता है. ठीक है. सो दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि लेफ्ट साइड पे हैं, चार कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि राइट साइड पे हैं. पहले मैं राइट वालों को डिस्कस कर लूं. जहां कहीं भी आप ये देखते हैं कि एक ऐसा वेब या एक ऐसा इंटरनेट जो कि ओमनी प्रेजेंट है. ओमनी प्रेजेंट मीन के जो हर जगह पर है, राइट. तो मेरे ख्याल में आज जो इंटरनेट है वो यू कैन सेफली से कि इट्स क्लोज टू बीइंग ओमनी प्रेजेंट, कि ये तकरीबन पूरी दुनिया में हर जगह पर है, एक्सेसिबल भी है. एटलीस्ट जहाँ पर एटलीस्ट 3G कनेक्टिविटी है वहाँ तक तो है. जो कुछ इलाके, पहाड़ी इलाके या कुछ ऐसे डिफिकल्ट टू रीच इलाके हैं कि जहाँ पर अभी भी शायद 2G कनेक्टिविटी है, वहाँ पर यू कैन से कि शायद वहाँ तक भी अभी नेट नहीं पहुंचा. लेकिन इट्स लाइक एयर, इट्स लाइक वाटर, इट्स एवरीवेयर नाउ, राइट. दूसरा कॉन्सेप्ट वेब 3.0 का वो है सिमेंटिक वेब. एक ऐसा वेब जो कि जिसके अंदर आप, जिस तरह आज हम करते हैं ना, कोई 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 चीज सर्च कर रहे होते हैं, तो वो एक खास सिमेंटिक्स के अंदर सर्च करता है. यानी कि आपको उर्दू में जिसको कहते हैं ना, मुद्दा, अपना मुद्दा बयान करने की जरूरत नहीं पड़ती. वो गूगल खुद ब खुद इन्फर कर लेता है कि आप क्या सर्च करना चाह रहे हैं. ठीक है. सो ये भी काफी हद तक इसके ऊपर भी बहुत सारी एडवांसमेंट हो सकी हुई है. या अगर आप इसको नीचे वाले कॉन्सेप्ट के साथ मिलाएं, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, तो इट्स प्रीटी एविडेंट कि अब ये वाला जो प्रॉमिस था सिमेंटिक वेब का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो ब्रेक थ्रूज हुई हैं खसूसन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के अंदर, यू कैन सेफली से कि अब जो है हमारा नेट जो है, जो वेब 3.0 इज एक्चुअली गोइंग टू मटेरियलाइज फास्टर देन इट एवर वाज. और फिर वेब 3.0 के अंदर कहीं मेटावर्सेस वगैरह कुछ पिछले 2-3 सालों में बहुत ज्यादा इस कॉन्सेप्ट में ग्रोथ आई है. बट मेरे ख्याल से ये एक सेकेंडरी चीज है. इट डजंट रियली रिलेट टू द एक्चुअल प्रॉमिस ऑफ वेब 3.0. जो फंडामेंटल चीजें हैं वो दो तीन ही है. ब्लॉकचेन है, जिसपे भी हम डिस्कशन करेंगे, और बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. और गुड न्यूज़ इज के इस प्लेटफॉर्म पे एक्सपीरियंस्ड इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स इंशाल्लाह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी बूट कैंप करवाएंगे. हमारा जो बूट कैंप्स का सेशन है इंशाल्लाह उसके अंदर फुल स्टैक तो होगी होगी, बट ब्लॉकचेन्स भी होंगी, और साथ साथ एआई, मशीन लर्निंग, आईओटी, ऑल ऑफ दिस इज कमिंग इंशाल्लाह. अच्छा, अब हम आ जाते हैं the left side of this mind map, which is more around the where we are going to discuss blockchains. लेकिन ब्लॉकचेन्स पे पहुंचने से पहले अगर आप इस माइंड मैप को देखें तो देयर आर टू की कॉन्सेप्ट्स. एक है डिसेंट्रलाइजेशन और एक है सिक्योरिटी. वी विल हैव टू फर्स्ट डिस्कस कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या चीज़ है, और फिर सिक्योरिटी का क्या पैराडाइम है जो कि वेब 3.0 की ग्रोथ को ड्राइव करेगा. आई विल अगेन से दीज आर वेरी क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि अगर आपकी ये बेस
इस्टेब्लिश हो जाती है तो फिर आगे चलने वाले, जब एक्चुअल बूट कैंप में आप कोडिंग करोगे, और कोडिंग करते हुए देखो, कोड लिखना आसान होता है, लेकिन जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है ना, कि जिस कॉन्सेप्ट तक पहुंचने के लिए आप कोड लिख रहे हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो दो हैं। एक है डिसेंट्रलाइजेशन और एक है सिक्योरिटी। सो पहले करते हैं डिस्कशन सिक्योरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन में बाद में आऊंगा। आज की तारीख में जब आप फेसबुक पे लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपका लॉगिन, आपका जो पासवर्ड है फेसबुक क्लियर टेक्स्ट में सेव नहीं करता, उसको इनक्रिप्ट करके सेव करता है। लेकिन ये एक ऐसा क्लेम है जो कि फेसबुक कहता है कि मैं करता हूँ, राइट। देयर कुड बी सम बैकडोर्स कि जिसकी जिसकी जिसको इस्तेमाल करते हुए आपका पासवर्ड तो नहीं, लेकिन आपका जो बाकी सारा डेटा है, ठीक है, उसको बड़े आराम से डिक्रिप्ट किया जा सकता है। सो व्हाट इट मींस इज कि एक ऐसा पैराडाइम होना चाहिए सिक्योरिटी का कि जिसके अंदर डेटा की ओनरशिप, और अगर आप ये लेफ्ट मोस्ट देखें सेक्शन ऑफ दिस माइंड मैप, डेटा की ओनरशिप और आइडेंटिटी की ओनरशिप वो यूजर के पास है। यानी कि मैं फेसबुक तो इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन फेसबुक इस्तेमाल करते हुए जो मेरा डेटा है, ठीक है, उसकी ओनरशिप मेरे पास है। ये आइडिया है, ये प्रॉमिस है वेब 3.0 का, फ्रॉम विद इन द सिक्योरिटी पैराडाइम। अगेन अगर आप माइंड मैप को मैं देख रही हूँ, सिक्योरिटी पैराडाइम के अंदर अंदर ट्रस्ट, डू यू ट्रस्ट फेसबुक? तो द आइडिया इज कि नो, वी डू नॉट ट्रस्ट फेसबुक। ठीक है, देर इज नो नीड टू ट्रस्ट अ सेंट्रल बॉडी। और दूसरी, परमिशन कि सिक्योरिटी पैराडाइम के अंदर जो दूसरा मेन कॉन्सेप्ट है वो है परमिशंस, कि एनीवन एंड एवरीवन शुड हैव एक्सेस टू वेब 3.0। यानी कि मुझे, अगर मैंने फेसबुक इस्तेमाल करनी है, तो फेसबुक पे अपना लॉगिन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, या उनके साथ अपनी कोई आइडेंटिटी की डिटेल शेयर करने की जरूरत नहीं है। ये मैं बड़ा की कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। लेट मी रिपीट, if I am creating an account on Facebook, I really do not need to create an account with them. That is the promise the Web 3.0 brings, कि यार मुझे वहां पर अपनी आइडेंटिटी रिवील करने की जरूरत नहीं है। आज आप सिर्फ फेसबुक पे या किसी भी चैनल पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हो ना, आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वो सारी डिटेल्स देते हो, जिसको डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन कहते हैं, राइट। पर्सनल इंफॉर्मेशन भी और डेमोग्राफिक भी। कुछ प्लेटफॉर्म्स यूजर नेम आपसे सिर्फ फुल फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इस तरह की इंफॉर्मेशन पूछते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म जो हैं वो उससे ज्यादा डिटेल पूछते हैं। बट द प्रॉमिस इज कि क्यों, क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि मैं बस फेसबुक से कनेक्ट कर जाऊं विदाउट लेटिंग पीपल नो हु आई एम, राइट। अच्छा जी, अब यहां तक अगर हम क्लियर हैं, अगेन आई विल बी कमिंग बैक टू दीज फंडामेंटल क्वेश्चंस अगेन, बट अगर यहां तक हम क्लियर हैं कि वेब 3.0 के अंदर जो सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी के अंदर ट्रस्ट और परमिशंस का जो पैराडाइम है, अगर वो आपको समझ में आ गया है, तो अब जो शायद इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिसेंट्रलाइजेशन, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। सो मैं क्यों कह रहा हूँ कि जो डिसेंट्रलाइजेशन एज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट शायद सिक्योरिटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये कह देना है कि चीजें सिक्योर होनी चाहिए, ठीक है, ये आसान है। लेकिन सिक्योर करना उसको सिक्योर करने का तरीका क्या होगा, असल बात तो इसके ऊपर होनी चाहिए ना। क्योंकि अगर मैं ये कहता हूं कि जी मेरा सारा का सारा डेटा फेसबुक के पास है, ठीक है, तो उसकी सिक्योरिटी उतनी ही इफेक्टिव है जितनी फेसबुक की सिक्योरिटी है। लाइक फेसबुक की अगर फर्ज करो बिल्डिंग है कोई, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस, फेसबुक की कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के पीछे बाहर गार्ड्स खड़े हुए, राइट। तो एनी इंट्रूडर
to access my data would need to break that security parameter, right? तो मैं ये क्यों कहता हूँ कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो सिक्योरिटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इस वजह से कि सिक्योरिटी डिपेंड करती है इस चीज पर कि जिस चीज को आप सिक्योर कर रहे हैं वो सेंट्रलाइज्ड है। फेसबुक के केस में सेंट्रलाइज्ड है क्योंकि वन पार्टी और वन गवर्निंग अथॉरिटी ऑपरेट्स इट। लेकिन अगर हम इसको डिसेंट्रलाइज कर दें, एंड आई कम टू दैट कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं पहले भी। अगर हम इसको डिसेंट्रलाइज कर दें तो ये ज्यादा आसान हो जाएगा टू अचीव सिक्योरिटी एज वेल। ठीक है। तो अब हम अगर ये कहें कि जी ये जो डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, इज इट अ न्यू कॉन्सेप्ट? ऐसा हरगिज नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट एक पुराना कॉन्सेप्ट है। और आप स्टूडेंट हो, हमने भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में, खैर उस टाइम तो नेट इतना फास्ट नहीं था होता, बट हमने भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में टॉरेंट से मूवीज वगैरह डाउनलोड किए हैं, बुक्स वगैरह डाउनलोड किए हैं, कंटेंट डाउनलोड किए। तो जो पीयर टू पीयर आपका नेटवर्क होता है वो ऑलरेडी डिसेंट्रलाइज्ड है। एंड फॉर दोज हु डजंट रियली नो हाउ अ पीयर टू पीयर नेटवर्क वर्क्स, इज के मेरे पास एक फाइल है, ठीक है, और आपके पास एक फाइल है। तो कोई दूसरा बंदा है, कोई तीसरा बंदा एक नेटवर्क पे कनेक्टेड है, वो फाइल आपके सिस्टम से भी डाउनलोड कर सकता है और वो मेरे सिस्टम से भी डाउनलोड कर सकता है। अगर मेरा सिस्टम ऑफलाइन हो गया तो वो आपके सिस्टम से वो फाइल डाउनलोड कर सकता है, राइट? ये एक पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन का एक फंडामेंटल रूल है। इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस मैंने जिस तरह कहा कि ऑलरेडी हैं, टॉरेंट्स हैं, आईपीएफएस एक प्रोटोकॉल है। अगर हमें वक्त मिला तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोटोकॉल है, हम इस पे भी डिस्कशन करेंगे। इसको कहते हैं इंटरप्लानेटरी फाइल सिस्टम, एक बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट है। विल प्रोबब्ली डिस्कस इट जब हमें कभी टाइम मिला इंशाल्लाह। फ्री नेट अगेन एक एक इनिशिएटिव है ऑफ क्रिएटिंग अ डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर इंटरनेट। बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। आप अगर इनको नेट पे देख लें आईपीएफएस को और फ्री नेट को, सिर्फ अगर इनकी जो डिस्क्रिप्शंस हैं वेबसाइट्स पे वो पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस बूट कैम्प या फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ ब्लॉकचेन्स वर्क, आपको इस कॉन्सेप्ट की तो ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये समझ में आना चाहिए कि डिसेंट्रलाइजेशन को अचीव करने का एक पुराना तरीका जो कि मार्केट में पहले से एग्जिस्ट करता है वो है पीयर टू पीयर नेटवर्क्स, टॉरेंट्स। ठीक है। और अब एक नया तरीका, नया भी नहीं कहना चाहिए, ब्लॉकचेन्स को भी आए हुए तकरीबन 12 से 15 साल हो गए, राइट? तो एक एक नया पैराडाइम है जो जिसके थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन अचीव की जा सकती है। ठीक है। और when we talk about blockchains, so there are a lot of blockchains which are already in the market. इथेरियम है, बिटकॉइन है, सोलाना है। ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछे। I'll pause the share क्योंकि मैंने चाय लेनी है अपने लिए। I'll be back in 30 seconds. You guys can type your questions in the chat and I'll be back in 30 seconds, okay? Give me. Assalamualaikum everyone. Muhammad Mutahir here from ETL Online. I hope everyone is doing good. Feel free to ask any question in the chat. Okay, no questions. Very surprising because I thought कि मैंने बहुत ज़्यादा कुछ explain कर दिया है। Can someone, or maybe at least two guys from the cohort, can at least type in that there are no messages or there are no questions ताकि मैं आगे चलूँ।
Let me see. अगर आप लोग अपना हाथ रेस करेंगे तो आपका माइक भी अनम्यूट किया जा सकता है ताकि यू कैन। ओके, ऑल क्लियर सर, बेहतरीन। रियली लाइक द एनर्जी बाय सागर। Oh, is security another topic? Isn't it like decentralization is always secure? अच्छा, ये एग्जैक्टली वही चीज है कि जो मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि ये जरूरी नहीं है कि एवरीथिंग विच इज डिसेंट्रलाइज्ड इज सिक्योर। अब इसका एग्जांपल ये है कि टॉरेंट्स हैं। टॉरेंट से अगर आप लोगों ने मूवीज डाउनलोड नहीं की हुई, तो हम लोगों ने तो बड़ी दफा की हुई है, क्योंकि पुराने जमाने में इतना ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं थे होते नेट पे, ये नेटफ्लिक्स वगैरह भी नहीं थी होती, राइट? तो हाउ अ टॉरेंट वर्क्स इज दैट देयर इज अ फाइल। आपने अपने पास टॉरेंट इंस्टॉल कर लिया, and now you can access that file. That file could be a movie, that file could be a PDF, कोई बुक भी, हमने बुक्स वगैरह भी इसी तरीके से ऑनलाइन बहुत ज़्यादा डाउनलोड की। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क इज बाय डिजाइन अ डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क, लेकिन बाय being a decentralized network by design does not necessarily mean कि वो सिक्योर भी है, right? Security is another layer on top. अब what I was trying to make you guys understand is कि एक सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क को सिक्योर बनाना, यानी कि जो सिक्योरिटी की लेयर एक सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पे आप जब इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसकी जो लेवल ऑफ सिक्योरिटी है वो इम्प्लीमेंट करना तो आसान है, लेकिन अगेन वो उतना सिक्योर नहीं होगा जितना एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क जिसको आप सिक्योर करेंगे वो होगा। सो दैट्स व्हाट माय फंडामेंटल थीसिस इज। ठीक है। अब डिसेंट्रलाइजेशन विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी, हाउ डज दैट वर्क? ठीक है, इसके ऊपर अभी मैं आगे डिस्कशन करता हूँ अब आपसे। सबसे पहले, एंड आई व्हाट आई विल प्रोबब्ली डू इज आई विल ट्राई टू डू, I hope you guys can still see my screen. But what I'll quickly do is I'll try to create a diagram of blockchain here for you. Okay. So if it is not making sense, then let me know. So blockchain होता क्या है? अभी हम ब्लॉकचेन के फंडामेंटल, और अगेन आपने इस तरह की बहुत सारी ऑनलाइन चीज़ें देखी होंगी, लेकिन मैं आई ट्राई टू मेक श्योर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें। ठीक है जी। अभी मैंने इसके अंदर कोई डेटा नहीं डाला। जो लोग कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड रखते हैं, जिन्होंने को थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग के भी लेसन्स पढ़ लिए हुए हैं या कोर्सेज ले लिए हुए हैं, डज दिस डायग्राम लुक फेमिलियर टू यू गाइस? Yes, sir. यस। हाँ, व्हाट एग्जैक्टली इट इज? Flow diagram, sir. हाँ, नहीं 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 नहीं, हाँ फ्लो डायग्राम तो है ही है, बट अजका ने कहा ये एक लिंक लिस्ट है।
सो इट्स बेसिकली अ लिंक लिस्ट। अगर यहाँ पर मैंने डेटा डाल देता हूँ, डेटा, माय डेटा, ठीक है, इधर डेटा है, इधर भी डेटा है, इधर भी डेटा है, ठीक है। तो डेटा और उसके पॉइंटर्स, अगेन आई probably try to use this pen here. I think this is going to be more easier to do. लेकिन अगर मैं इसको ये कहूँ कि यार ये डेटा है, ठीक है, और उसका पॉइंटर है अगले डेटा सेट का, ठीक है, फिर अगेन डेटा है और अगले डेटा सेट का पॉइंटर है। सो मैं इसको कह देता हूँ ये डेटा, इसके अंदर ए पड़ा हुआ है, इसके अंदर बी पड़ा हुआ है और इसके अंदर सी पड़ा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज एसेंशियली व्हाट अ ब्लॉकचेन इज इन इट्स वेरी फंडामेंटल लेवल, ठीक है। अच्छा, आई थिंक अज़का भी हैं और मुताहिर आप भी ऑनलाइन हो। आई वुड लव, आई वुड प्रॉब्ली लाइक यू गाइस टू असिस्ट मी विद एनी क्वेश्चंस व्हिच आर रेलेवेंट, ताकि मैं थोड़ा सा ना स्पीड से आगे चल सकूं, ठीक है। तो देयर आर टू पीपल वेटिंग इन द रूम, वर दे? मुताहिर, कैन यू ऐड पीपल हु आर स्टिल वेटिंग? एनीवेज, खैर, तो हमने अभी ये चीज इस्टेब्लिश की कि इन इट्स फंडामेंटल मैनिफेस्टेशन ये एक लिंक लिस्ट है, ठीक है। और ये लिंक लिस्ट क्यों है, ब्लॉकचेन एक लिंक लिस्ट क्यों है, अभी हमने उस पर डिस्कशन करनी है। हमने कहा कि यार हमने अचीव क्या करना है, ठीक है ना। आप लिंक लिस्ट क्यों बनाते हैं? आप लिंक लिस्ट तब बनाते हैं जब आपने डेटा को एक खास सीक्वेंस में आगे या पीछे मूव करना हो। अगर आपने दोनों तरफ मूव करना है तो आप डबली लिंक लिस्ट बनाएंगे, और अगर आपने एक तरफ पे मूव करना है तो वो सिंगली लिंक लिस्ट होगी। मुझे थोड़ा सा भूल रहा है, बट अगेन आई थिंक दिस इज प्रॉब्ली एन एक्यूरेट स्टेटमेंट। बट लिंक लिस्ट क्यों बनाई गई है? यहाँ पर लिंक लिस्ट ब्लॉकचेन को इन इट्स फंडामेंटल मैनिफेस्टेशन, व्हाई इज इट अ लिंक लिस्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए अगर मैं अपनी पिछली स्लाइड पे दोबारा चला जाऊं, हम इधर से भी स्टार्ट हुए थे ना, कि व्हाट इज इट दैट यू वांट टू अचीव हियर। हमने अचीव क्या करना है? हमने करना है डिसेंट्रलाइजेशन, और हमने अचीव करनी है सिक्योरिटी, ठीक है ना। ये दो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी नाउ यू कुड क्वेश्चन कि यार इसको लिंक लिस्ट बनाने से डिसेंट्रलाइजेशन कैसे अचीव हो रही, और इसको लिंक लिस्ट बनाने से सिक्योरिटी कैसे अचीव हो रही, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो आसान टॉपिक है, विच इज सिक्योरिटी। अगर मैं ये कहूँ, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास ये जो डेटा है जहां पर ए लिखा हुआ है, लेट्स सपोज, ठीक है, मैं इस डेटा को, अभी मैं इसके साइज की बात नहीं कर रहा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये इमेज है या टेक्स्ट है या जो कुछ भी है, मैं ये कह रहा हूँ लेट्स सपोज इधर ए लिखा हुआ है, ठीक है, लेटर ए। मैं इसको ऑब्फस्केट कर देता हूँ, मैं इसका एक हैश क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। जब मैं इसका हैश क्रिएट करूंगा ना, तो ये ए की बजाय कुछ और ही बन जाएगा, ये ए की बजाय ये कुछ और बन जाएगा, लाइक इट कुड बी समथिंग लाइक, आपको पता ना, जब भी किसी डेटा को हैश करते हैं तो एक डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन सामने आ जाती है, ठीक है। और हैश हैश फंक्शन जो होते हैं वो हमेशा वन वे होते हैं, राइट। अच्छा, ये जो चीज, कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ, इन्हीं के ऊपर आपका आगे से क्विज भी होना है। और अगेन, बेस्ड अपॉन योर अटेंडेंस
and based upon your scores in the quiz will determine whether you get a seat in the actual boot camp or not, जहाँ पे हमने जी alphanumeric string is equal to hash, आपने ठीक लिखा है, बट कॉन्सेप्चुअली अगर देखा जाए तो हैश एक होता है अल्फान्यूमेरिक स्ट्रिंग ही है, बट it can be generated from a video, it can be generated from, क्योंकि at the end of the day bits and bytes ही है ना, तो हैश फंक्शन की एक ये होती है सबसे की फंक्शनैलिटी कि वो वन वे होता है, यानी कि अगर मैंने अपने नाम का, मेरा नाम है ना जी इरफान, ठीक है, मैंने अगर इरफान स्मॉल लेटर्स IRFAN इसका हैश जनरेट किया है और वो निकला है लेट्स सपोज XYZ, ये मैं अगर लिखती, आई थिंक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। इरफान का जो हैश है अगर वो ABC 1 2 3 निकला है अगर, ठीक है, तो कैपिटल आई वाला जो इरफान है उसका हैश कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, एंड इट इज कंप्यूटेशनली एक्सट्रीमली extremely computationally intensive to actually know कि what a possible outcome is a hash is going to be, right? तो using a hash what we can do is हम ये जो डेटा है इस ब्लॉक में जो डेटा पड़ा हुआ है ए, ठीक है, मैं इसका हैश जनरेट करके, ठीक है, उसको आगे से इस्तेमाल कर सकता हूँ इस चीज को डिटरमिन करने के लिए कि क्या ये वैल्यू चेंज हुई है कि नहीं हुई, ठीक है। सो अगर मैं ये कहूँ कि ओरिजिनल वैल्यू थी इरफान और उसका हैश है ABC 1 2 3, तो मैं ओरिजिनल वैल्यू और उसका हैश दोनों प्रेजेंट कर सकता हूँ और किसी को भी कह सकता हूँ कि यार आप जो ओरिजिनल वैल्यू मेरे पास आई थी ना वो इरफान लिखा हुआ था, और अगर यकीन नहीं आता तो इसका हैश जनरेट करें, उसका और उसका हैश ABC 1 2 3 आएगा तो इसका मतलब ये है कि मैं सच बोल रहा हूँ, राइट। ये ऐसा ही है कि मैं किसी के साथ 10 रुपए की ट्रेड करता हूँ, मैं कहता हूँ यार आप मुझे 10 रुपए दे दो, ठीक है, और मैं, हाँ विच इज यूनिक, बिल्कुल सही। तो सागर इज कंट्रीब्यूटिंग विद वेरी गुड कमेंट्स, आई वुड encourage everyone to contribute as well। तो इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि मैंने सागर से, since he is probably the most contributing person in today's session, तो मैंने सागर से 100 रुपया लिया और उस ट्रेड को, यानी कि मैंने इरफान ने सागर से 100 रुपया लिया, इसको हम एक हैश जनरेट करके साथ रख देते हैं एज अ प्रूफ कि ये ट्रेड 100 रुपए की हुई। तो अब अगर उस ट्रेड को नाम कोई चेंज करता है या ये चेंज करता है कि ट्रेड 100 रुपए की हुई थी या नहीं, उसका हैश को डिफरेंट जनरेट होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको एज एन एविडेंस प्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं, जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन हुई थी इरफान और सागर के दरमियान वो 100 रुपए की थी, और अगर उसको किसी ने मॉडिफाई किया तो मॉडिफाई जैसे ही होगा, इवन एक कैरेक्टर भी अगर मॉडिफाई होगा तो वो उसका हैश चेंज हो जाएगा, और अगर उसका हैश चेंज हो जाएगा तो जिस बंदे ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को टेम्पर किया है उसको उसके हैश को भी टेम्पर करना पड़ेगा, ठीक हो गया। अब विद दिस फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग मैं अगर ये कहूं कि एक ऐसी ब्लॉकचेन है कि जिसके अंदर हर पिछले ब्लॉक का हैश, हर पिछले ब्लॉक का हैश हर अगले ब्लॉक में पड़ा होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने इस पिछले ब्लॉक को करप्ट करना है और अपना ब्लॉक इंसर्ट करना है, ठीक है,
तो उसको यहां पर भी वो हैश अपडेट करना पड़ेगा। अदरवाइज जब इस ब्लॉक को रीड किया जाएगा तो इसके अंदर तो पिछले ब्लॉक का हैश कोई और पड़ा हुआ है। तो ये कहा जा सकता है ना कि नहीं यार, जो जो पिछला ब्लॉक है उसका हैश चेंज हुआ है, इसका मतलब है कि ये ब्लॉक जो है वो क्वेश्चनेबल है, राइट? तो इफ समवन चेंजेस दिस ब्लॉक, तो नॉट ओनली ही हैज टू चेंज द हैश, यानी कि ये मैं इसको अगर रेड कर दूं, नॉट ओनली ही विल हैव टू डू दिस, बट ही विल आल्सो हैव टू डू दिस फॉर ऑल दी सबसीक्वेंट ब्लॉक्स। क्योंकि ये ध्यान में रखें कि ए के कंटेंट और उसका हैश बी में पड़ा हुआ है, ठीक है? बी का कंटेंट और उसका हैश सी में पड़ा हुआ है, सी का कंटेंट और उसका हैश डी में पड़ा हुआ है। तो अगर मैं ए को मॉडिफाई करता हूं तो उसके आगे जितने भी ब्लॉक्स हैं वो सारे मुझे चेंज करने पड़ेंगे। यहां तक एम आई मेकिंग सेंस? देखें, अगर इस कॉन्सेप्ट को और इससे जुड़ी हुई सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन के पैराडाइम को अगर आप समझ गए ना, तो आगे सारा आसान हो जाएगा काम। अच्छा जी, encryption is a two way where information is scrambled in such a way that it can be unscrambled. Hashing is a one way function. हाँ, good. हाँ, so encryption is different than hashing. uh, खैर, so again my point is very simple. ये वो चीजें हैं कि जो आपने शायद डॉक्यूमेंट्स पे ऑलरेडी पढ़ी हैं, बट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ केस कि जो हम आगे जब कोड लिख रहे होंगे या आगे मैं आपको वो मेटामास्क वगैरह या जो ब्लॉकचेन के वॉलेट्स वगैरह हैं उसके हवाले से अपने नेक्स्ट सेक्शंस में बता रहा हूँ। तो आई एम एक्चुअली बिल्डिंग अ केस, ठीक है? अभी हमने क्रिप्टोग्राफी, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, वो सारा भी डिस्कस करना है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर को थोड़ी सी भी आ, वो है lack of understanding, तो please ask your question again. You don't really have to ask your question right now because you can ask them on the portal as well. But you do have to make sure that इस particular concept के ऊपर आपको किसी किस्म का कोई confusion नहीं है। क्योंकि ये जो अभी अस्का ने भी सवाल पूछा था कि सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन को हमने अब साथ लेके चलना है ना, तो अभी तो हमने सिर्फ ये कहा कि जी लिंक लिस्ट है, और हमने ये भी कहा कि लिंक लिस्ट में हैश है और हैश आगे भी है, राइट? इट स्टिल डज नॉट सॉल्व अवर प्रॉब्लम। इट इज समवट सिक्योर, राइट? बट इट स्टिल डजंट सॉल्व a lot of our problems, और अभी हम प्रॉब्लम्स को आगे डिस्कस करेंगे। आई एम assuming there is no question on this, तो मैं फिर अब आगे चलता हूँ। अच्छा, ये जितने भी हमारे प्री बूट कैंप और इवन के बूट कैंप के अंदर भी जो हमारे हैंड्स ऑन सेशन हुआ करेंगे वो सारे के सारे 1 घंटे के हुआ करेंगे। If anyone, all of you guys who are present today, you spread the word around. और अगर आप लोगों को ये लगता है, बिकॉज अगेन स्टूडेंट्स को खुद पता होता है कि उनकी लाइफ के अंदर कितनी ज़्यादा बिजनेस है, व्हाट्सएप भी देखना होता है, यूट्यूब भी देखनी होती है, राइट? तो अगर इफ दिस टाइम डजंट सूट यू गाइस, तो प्लीज रेज योर वॉइस इन दी पोर्टल। हमारा जो डिस्कशंस वहाँ पे चल रही हैं उधर यू कैन potentially raise your voice कि ये टाइम हमें सूट नहीं करता। You could also conduct a poll on these sessions, but do make sure that you participate, because again इनकी बेस के ऊपर हमने सवाल पूछने हैं, हमने क्विजेस पूछने हैं, and only those who will pass those tests will actually be part of the boot camp। क्योंकि boot camp के अंदर जो आपकी इन्वॉल्वमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा हमें चाहिए होगी। ऑब्वियसली अगर मैं या हमारे जो एक्सपीरियंस मेंटोर्स हैं वो अपना टाइम देते हैं, तो वी वुड एक्सपेक्ट यू गाइस टू आल्सो गिव फुल फोकस एंड डेडिकेशन। तो जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है इस वजह से है कि वी मेक श्योर कि ओनली सीरियस पार्टिसिपेंट्स आर एंगेज्ड, एंड फिर हमने इंशाल्लाह जो आखिर में एक सर्टिफिकेट देना है, वी विल ट्राई टू मेक श्योर दैट ओनली द वर्दी कैंडिडेट्स हैव दैट सर्टिफिकेट इन देयर हैंड। अगेन
वी विल स्टॉप एट 5। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है। हमारा नेक्स्ट सेशन फ्राइडे को है। आई विल क्विकली summarize what we've discussed and the topic of our next session, and then at exactly at 5 o'clock we will stop today's session. अच्छा, ये मुताहिर ने शायद पूछा है क्वेश्चन, हाउ इज अ हैश ऑन ब्लॉकचेन डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट कीज? यार, हैश जो है वो एक पब्लिक फंक्शन होता है, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड। यू कैन टेल कि मैं फला हैश इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं एक इनपुट दूंगा, और अगर मैं वही इनपुट देता हूं तो हमेशा वही आउटपुट आएगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हैश जो है वो इन अ सेंस पब्लिक है, राइट? प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी में जब तक आपके पास की नहीं, ठीक है ना, आप सो हैशिंग और प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी में मेन फर्क ये है कि हैशिंग आप इनपुट से आउटपुट की तरफ जा रहे होते हो, यानी कि एक इनपुट है आपने, और आपने ये वेरीफाई करना है कि क्या इसका ये हैश है। ठीक है, वर्सेस क्रिप्टोग्राफी या प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी में आपके पास एक आउटपुट होती है और आपने ये वेरीफाई करना होता, सॉरी, आपके पास एक आउटपुट होती है और आपने उसको डीक्रिप्ट करना है। आपने उसका रिवर्स करके उसका ओरिजिनल जो कंटेंट है वो निकालना है, राइट? नाउ ये कान को पकड़ने के दो डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ द सिक्योरिटी पैराडाइम ये कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है। एक में आपने एक चीज की ऑथेंटिसिटी इस्टेब्लिश करनी है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा ये कागज कि जिस पे मैंने लिखा हुआ है कि मैं और मुताहिर आपस में 100 रुपए की ट्रेड कर रहे हैं, मैंने इस कागज की ऑथेंटिसिटी को एस्टेब्लिश करना है। आपने डिजिटल सिग्नेचर्स का भी नाम सुना होगा, वो भी बेसिकली वन वे हैश फंक्शंस, मेजॉरिटी ऑफ देम आर। सो वन व्हाट दे डू इज कि यार मैं उस सिग्नेचर को कि जो कंटेंट और उसका हैश है किसी के पास ले जाऊं और उसको बताऊं कि ये हैश्ड है। अब चूंकि हैश जो है वो एक पब्लिकली नोन एंड फंक्शन है, तो वो अपने पास उस डेटा की बेस पे जब हैश कंप्यूट करेगा, ठीक है, तो उसको आउटपुट वही मिलेगी, तो जो मेरा क्लेम है वो सच साबित हो जाएगा। क्रिप्टोग्राफी या प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी में थोड़ा सा फर्क है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। एक आउटपुट पड़ी हुई है, मेरा डेटा पड़ा हुआ है, मेरी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, मेरी फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, मैं उसके ओरिजिनल कंटेंट को तो एक्सपोज कर ही नहीं रहा। मैंने उसको इरफान की जगह XYZ लिख दिया हुआ है, ठीक है। नाउ आई नीड द इनपुट एंड दैट की टू अनलॉक, राइट? तो मैंने आउटपुट से अनलॉक करना है इनपुट की तरफ। क्रिप्टोग्राफी में जो डिक्रिप्शन होती है वो आउटपुट से अनलॉक होती है इनपुट। इधर हमेशा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हमेशा फॉरवर्ड ही रहेगा, इनपुट हैश आउटपुट, और वेरिफिकेशन के टाइम भी इनपुट हैश आउटपुट। ठीक है, आई आई होप आई वाज एबल टू Yes, sir. एक्सप्लेन। Yes, sir. अच्छा, अच्छा, अगेन वी जस्ट हैव 2 more minutes, तो अभी उसमें मैं अगला टॉपिक तो नहीं अब स्टार्ट कर सकता। आई वुड अगेन एंटरटेन अ कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस। अगर किसी को बूट कैंप के हवाले से कोई क्वेश्चन है, हमने जो उसमें डिटेल शेयर की है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्री बूट कैंप्स का मतलब मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को जो फंडामेंटल्स हैं, जो कि आपको यूजुअली नेट पर से भी या किसी फ्री कोर्स से भी मिल जाते हैं, हम सिर्फ वो डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल्स। बूट कैंप के अंदर इंशाल्लाह इंशाल्लाह वी विल डू हैंड्स ऑन कोडिंग, और उसके अंदर आप अगर कोई फुल स्टैक डेवलपमेंट का बैकग्राउंड है तो वो भी हेल्प होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दिस इज ऑल कोडिंग, राइट? सो अगर किसी का फुल स्टैक डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है तो वो ऑब्वियसली बुरकार आएगा। अगर किसी का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है तो ही शुड स्टार्ट लुकिंग एट लीस्ट सम ऑफ द बेसिक फंडामेंटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, पाइथन या जावास्क्रिप्ट की अगर कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेता है तो अच्छी बात है। जो हमारा कैपस्टोन प्रोजेक्ट होगा उसमें हम
सॉलिडिटी जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन की मेन या ईवीएम कंपैटिबल ब्लॉकचेन्स की मेन लैंग्वेज है, उसके ऊपर एक मॉड्यूल लिखेंगे जो कि ब्लॉकचेन वाला होगा। और फिर उसके ऊपर जो हमारी ऐप होगी, और कोई एक प्रोजेक्ट नहीं होगा जिसको सारे कर रहे होंगे, हर पार्टिसिपेंट के लिए एक सेपरेट कैपस्टोन प्रोजेक्ट होगा, ताकि हर कोई अपनी इंडिपेंडेंट और अपनी इंडिविजुअल की जो एबिलिटी है उसको सामने लेके आए। अगेन, और जो उसकी लेंथ है उसको 4 to 6 वीक्स इसलिए रखा है ताकि अगर कुछ बच्चे जो हैं अगर वो जल्दी कर लेते हैं काम, तो वो जल्दी अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवा दें। जिनको थोड़ा सा टाइम लगेगा तो वो फ्लेक्सिबल रखा है हमने टाइम के, फॉर 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 एवरीवन एल्स टू कैच अप, तो हम उसको 6 महीने 6 वीक्स तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। साउंड्स गुड। अच्छा, सो फॉर टुडे बरुए कार इज इफेक्टिव। हाँ, उर्दू भी एक बड़ा प्रॉब्लम है हम लोगों की, इतनी खास अच्छी नहीं है। खैर, एनीवेज, सो थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अगेन हम कोशिश करेंगे कि हम सिर्फ उन लोगों को अपने एक्चुअल बूट कैंप में चांस दें कि जो ये प्री बूट कैंप सेशंस अटेंड कर रहे हैं। अभी तक हमने सिर्फ 3 प्लान किए हुए हैं, एक जुम्मे को है और एक नेक्स्ट वेडनेसडे को है। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन वेयर वी आर, वी मे एक्सटेंड इट with one or more sessions, but then again, इंशाल्लाह सितंबर के फर्स्ट वीक के एंड तक हम अपना जो फॉर्मल बूट कैंप है उसकी एग्जैक्ट टाइमिंग्स अनाउंस कर देंगे, और जो जो लोग उसमें सेलेक्ट हुए हैं वो भी अनाउंस कर देंगे। ठीक है जी। हाँ, यू डू सब्सक्राइब टू अवर व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल एज वेल, ताकि आप लोगों को जो है अपडेट्स ऑन आवर अपकमिंग सेशंस वो मिलती रही। अगेन, दिस इज वन ऑफ द सेशंस दैट वी आर डूइंग। हमारा हर संडे को एक फुल स्टैक डेवलपमेंट पे भी सेशन होता है, उसको भी अटेंड करें। और आई विल अगेन इनकरेज यू गाइस टू स्प्रेड द वर्ड। हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि हमें इतना क्वालिटी कंटेंट फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स फ्री में मिल रहा हो। सो डू स्प्रेड द वर्ड अराउंड, और मेक श्योर दैट मोर एंड मोर पीपल ज्वाइन इन। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much, sir. थैंक यू। अल्लाह हाफिज। Allah.